So with this, I will start the lecture number 12. Okay. So till now we have covered the linear differential equation with constant coefficients. Okay, that is our first part. In that, the complementary function. Okay, then methods to find the particular integral. Okay, in that there are three methods in our syllabus: general, shortcut, and method of variation of parameter. Correct. And okay. After that, in our next chapter, I can say, or in next part, we have learned uh, how to solve a linear differential equation with variable coefficients. Okay. So idea is what? And then we have to convert that linear differential equation with variable coefficients into a linear differential equation with constant coefficients. And to do that, we have to use we we use the substitution method. Like say, put if it is Cauchy's linear differential equation, we just put x is equal to e raised to z. And if it is Legendre's linear differential equation, then we just put x plus b is equal to e raised to z. Okay, that is the idea behind Cauchy's and Legendre's. Okay, as far as theory part is concerned, those two topics are very important. Okay, and then the solution of Cauchy's and Legendre's differential equation is totally depend on the shortcut method. तो अगर आपकी shortcut method perfect हो रही है या आपको shortcut method अच्छे से समझ में आ रही है, तो ये Cauchy's and Legendre's का पार्ट आपको समझ में आ जाएगा. There are number of questions on the Cauchy's and Legendre's linear differential equation. Okay, so I can say that is our first part. Now, so this is all about, I can say, a linear differential equation. Now, there is one more type of this linear differential equation. We call it as simultaneous linear differential equation or symmetrical simultaneous linear differential equation. Okay, so I will change this: simultaneous and symmetrical simultaneous linear differential equation, or combined I can say a simultaneous linear differential equation. Okay, so under this there are two differential equations. So be just the simultaneous linear differential equation. Okay, you all are aware about your simultaneous equation. Okay, simultaneous linear equation. अपने 11th 12th में ax plus by equal to say c1 and say dx plus ey is equal to c2, like this. Okay, so these two equations are called as simultaneous linear equation. Scientific calculator पे भी जो आप solve करते हो, okay, simultaneous linear equation of 2 by 2 order, simultaneous linear equation of 3 by 3 order. ठीक है, so that all are under the linear system. Okay, ये मैट्रिक्स में भी आपने वो पार्ट लर्न किया है. ठीक है, तो इसमें भी आपको उसी फॉर्मेट में एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करना है, बट वहां पे आपके पास इक्वेशन थे, लिनियर इक्वेशन थे. यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाले. ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज व्हाट? साइमल्टेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यू कैन से दिस डेफिनेशन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप: a1 dx by dt plus b1 x plus c1 y is equal to f of t, a2 dy by dt plus b2 x plus c2 y is equal to say g of t. Okay, but it is already decided in the meeting of M3 that there is no theory question on this topic. Okay, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में शायद थोड़ी बहुत आइडिया दी थी. ये एक्चुअली सिलेबस में है. ओके, बट इसके ऊपर ना आपको किसी भी एग्जाम में, ना इनसे में ना किसी और फॉर्मेट के एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला. ओके, इसलिए मैंने थ्योरी पार्ट तो सारा यहाँ पे कंसिडर किया है, बट आई विल स्किप दिस मेथड. ओके, क्योंकि अभी इमीडिएटली कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% ये सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला. ठीक है. ओके, रीजन क्या है आप देखो, यार इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो इट हैज अ बिग सोल्यूशन. ओके, ये केस 1 यहाँ पे खत्म हो रही है, उसके बाद केस 2, फिर ये. ओके, सो 3-5 स्लाइड्स में इसका सोल्यूशन कवर हो रहा है. तो ऐसे 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको कभी नहीं आने वाले. ठीक है, तो अभी के लिए ये मैं स्किप करता हूँ. इसकी पीडीएफ में आपको शेयर करता हूँ, जिनको जस्ट फॉर इंटरेस्ट अगर आपको रीड करना है तो आप रीड करो. अदरवाइज एज फार एज अवर यूनिवर्सिटी सिलेबस इज कंसर्न, उसमें इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला. ठीक है, सो दैट यू कैन पुट दिस टॉपिक इन ऑप्शन. ठीक है, सो अवर मेजर, अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है. अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है तो कंफर्म आपको इस सेकंड टाइप के ऊपर, सो सी टाइप. So first is linear differential equation, second is simultaneous differential equation. Now third part is symmetrical simultaneous differential equation. So there are different types of differential equation. Okay, so that we have to cover now. Okay.
तो इस टॉपिक के ऊपर आपको एक कंफर्म क्वेश्चन होगा, ठीक है। सी आपको इतना फोकस करना है, यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन 1 और करके क्वेश्चन 2 आने वाला है। सो एट द एंड हर एक टॉपिक आपका उसमें कवर होने वाला है, क्वेश्चन 1 के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 के 3 क्वेश्चन। सो बेसिकली देर आर 6 क्वेश्चन ऑन यूनिट 1, तो 6 वैरायटी भी उसमें आ सकती है, 6 क्वेश्चन की वैरायटी। तो आप देखो स्टार्टिंग से क्या क्या वैरायटी हमने कवर की है। तो इसके ऊपर भी एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा, वी डोंट नो वेदर इट इज इन क्वेश्चन 1 और वेदर इट इज इन क्वेश्चन 2, ओके। वो भी आपको मैं लास्ट में क्लियर करता हूँ, ओके। वी हैव परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन 1 में क्या चीज़ है, क्वेश्चन 2 में क्या चीज़ है, ओके। अभी इमीडिएटली वो ओपन नहीं करो, सो दैट यू कैन फोकस इक्वली ऑन ऑल टॉपिक्स, और बाद में फिर आप डिसाइड करो कि चलो ये टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है, सो वेदर वी कैन पुट इन ऑप्शन और नॉट, ओके। बट इन सब में ऐसी कोई चीज़ आपको रिस्क, मतलब ऑप्शन में या ऐसी कोई चीज़ आपको ट्राई भी नहीं करनी है, वो ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है, कि वो स्कोरिंग पार्ट है आपके लिए, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आई कैन से सेकंड, क्योंकि सॉरी जो सेकंड पार्ट है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमने स्किप किया है। सो आई कैन से दिस इज अवर थर्ड type of differential equation. We call it as symmetrical simultaneous differential equation. See, now idea is totally different. जो अभी तक आपने लर्न किया है उसका यूज इसके आगे कहीं पे भी नहीं होने वाला. So that is the whole part. Okay. So till last lecture जितना भी हमने कवर किया, that is all about your linear differential equation with constant coefficient. इसके आगे जो पार्ट होगा वो टोटली न्यू पार्ट होगा. Okay. New concept and new method to find its solution. Okay. So let's see the definition first. A differential equation of the form dx upon p, where p is any function in x, y, z, 3 variable function, equal to dy by q equal to dz by r. Okay, such type of a differential equation. Okay, this is in the form of ratio. I can say dx upon some function is equal to dy upon some function is equal to dz upon some function. Here also I fix these notations. Okay, these notations are fixed. Okay, whatever values there in the denominator of dx, we call it as p. Whatever values there in the denominator of dy, we call it as q, and similarly dz के नीचे जो भी वैल्यू आएगी we call it as r. So this capital P, capital Q and capital R, these notations are fixed. Okay, so such type of a differential equation we call it as a linear where P, Q, R are the functions of x, y, z. Okay, so where P, Q, R, okay, these three are actually the functions of x, y, z. Okay, so it's a combination of x, y and z. Okay. So such type of differential equation we call it as symmetrical simultaneous differential equation. Okay. Now this first ratio, okay, dx upon something or dx, I can say coefficient of dx. Okay, we call it as first ratio. Similarly, this is this we call it as second ratio, and the third ratio is this dz upon r. Okay, this is just for your understanding, क्योंकि बाद में ऐसे स्टेटमेंट में कंसिडर करने वाला कि कंसिडर फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, कंसिडर सेकंड एंड थर्ड रेशियो, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का मीनिंग यहीं पे फिक्स कराओ. फर्स्ट मीन्स dx, सेकंड मीन्स dy एंड थर्ड मीन्स dz. ओके, दैट्स इट. ओके, now question is how you solve or how you find solution of this symmetrical simultaneous differential equation. So in our syllabus there are 3 methods. Okay, first is method of grouping. Okay, or I can say a combination. Okay, it's actually a simple method. Second is method of multipliers. Okay, this is a little bit difficult. Okay, difficult in the sense इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि चलो इस मैकेनिज्म से इस पर्टिकुलर वे से अगर आपने सॉल्व किया तो आपको लास्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके, ऐसा कोई पार्ट सेकंड मेथड में नहीं है. ओके, इस मेथड में बेसिकली क्या है, आपको वर्कआउट करके यार आई कैन से बाय योर लॉजिक एक्चुअली आपको मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट करने हैं. ओके, तो इसलिए मे भी कुछ स्टूडेंट को ये पार्ट डिफिकल्ट जा सकता है, बट इफ यू प्रैक्टिस से 6 और 7 क्वेश्चन तो उसके बाहर भी कुछ नहीं आने वाला. तो सी एवरी टॉपिक इज बाउंडेड. ठीक है, अगर वो डिफिकल्ट भी है या सिंपल भी है, बट एवरी टॉपिक इज बाउंडेड. उस नंबर ऑफ क्वेश्चन के बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला. तो जिनको डिफिकल्ट जा रहा है, जिनको ऑलरेडी इंटरेस्ट है, जिनको क्लियरली समझ में आ रहा है, उनको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना होगा. बस एक क्वेश्चन देखा तो उनको ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन में आइडिया आ जाएगी. बट दिस इज नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. सो एटलीस्ट ऐसे केसेस में जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको बाउंडेड करो. ओके, जस्ट प्रिपेयर 3-4 क्वेश्चन. ओके, विद योर टीचर कंसर्न. ठीक है, तो एटलीस्ट क्या होगा कि आप उतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एग्जाम में अगर कोई और कॉम्बिनेशन, लिटिल बिट कॉम्बिनेशन भी आ जाता है तो भी आपको सॉल्व होगा. ओके, ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे ऐसे टॉपिक में तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा. ओके, एंड आवर थर्ड मेथड इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो वी विल सी वन बाय वन.
uh, let's start with our first method of grouping. Okay, so how you find a solution of this simultaneous linear differential equation, that is dx. So see, our focus is this: you have to solve dx upon p. Okay, you have to find the solution of this, then dy. Okay, let it be, छोड़ दो ये, राइट करने में टाइम जाएगा. dy upon q and dz upon r. Okay, so our first step is this: find two ratios. Okay, find two ratios in which third variable is absent. Okay, okay, two ratios means, see, I just copy that differential equation from previous slide. So this is our focus. So step one is like this: find two ratios. Is total there are three ratios. Dx upon p is your first ratio, dy upon q is your second ratio, dz upon r is your third ratio. Okay, so from these three ratios, find two ratios. Either say dx upon p is equal to dy upon q. Okay, you can consider this two, or you can consider this two, or you can consider first and third. So there are only these three possibilities. So from these three possibilities, find at least one possibility, or find two ratios in which your third variable is absent. So see, there are three variables x, y, z. तो अगर आप फर्स्ट टू पेयर कंसिडर करते हो, इफ आई कंसिडर से dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q, ठीक है, तो स्टेप वन के लिए इसमें से कौन सा वेरिएबल आपको absent चाहिए? z, थर्ड वेरिएबल. dx and dy is already cover in your first is in your ratio. Okay, थर्ड वेरिएबल absent करना मतलब आपको यहाँ पे z absent करना है. इफ आई कंसिडर से सेकंड एंड थर्ड रेशियो, dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r. सो y और z ऑलरेडी ये दो वेरिएबल वहां पे रहेंगे. आपको क्या देखना है? वेदर योर x इज absent और नॉट. करेक्ट. एंड सिमिलरली इन फर्स्ट एंड थर्ड, जस्ट चेक वेदर y इज absent और नॉट. ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आपको वो रेशियो कंसिडर करना है. ओके, सो फाइंड टू रेशियोज इन विच योर थर्ड वेरिएबल इज absent, और इट कैन बी कैंसल्ड. ओके, ऐसा भी चेक करो कि अगर वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं. कभी कभी यहाँ पे y मतलब dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q में, ओके, z पे अगर कैंसिल हो रहा है, ओके, सो इन दैट केस आल्सो यू कैन कंसिडर द फर्स्ट टू रेशियोज. ठीक है, और भी आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा. बट अभी स्टेप वन में आपको बस क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट कंसिडर एनी टू रेशियोज. सो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज to consider that ratio. One is dx upon p is equal to dy upon q, first possibility. Second is dy upon q is equal to dz upon r, and third possibility is dx upon p is equal to dz upon r. Okay, तो इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है. उसके बाद क्या देखना है कि अगर आप मतलब x एंड y की पेयर कंसिडर करते हो तो उसमें z एब्सेंट चाहिए, y और z की पेयर अगर आप कंसिडर करते हो तो उसमें x एब्सेंट चाहिए, एंड सो ऑन. x एंड z की करते हो तो y एब्सेंट चाहिए. ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन. Okay, now second step, after that just use the variable separable form, or just write the variable separable form of that differential equation and solve. Okay, so after this you have to just follow the differential equation topic from your unit 1 of the M2. Okay, so just solve that differential equation by using variable separable form, that and you will get your first solution. Okay, but see, for symmetrical simultaneous differential equation, okay, in this case, or I can say a differential equation of this type. Okay, इसका जो solution है, okay, मैंने वो actually explain नहीं किया है क्योंकि आपको में भी confusion होगा, but इसका जो solution आता है, okay, उसके solution में दो independent solution आपको calculate करने. Okay, so if you see the general solution of dx upon p equal to dy upon q is equal to dz upon r, so there are two independent solution for this type of differential equation. तो आपने पहला तो कैलकुलेट किया, इसलिए मैंने यहीं पे टाइटल दिया, दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है, सो स्टेप 3 के अगेन ट्राई टू रिपीट और फाइंड वन मोर पेयर. अभी आपने क्या किया, एक पेयर कैलकुलेट की थी, टोटल देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, उसमें से एक पेयर आपने कैलकुलेट की थी, उसको सॉल्व किया, यू विल गेट द फर्स्ट सॉल्यूशन. सेम प्रोसेस रिपीट करो फॉर रिमेनिंग टू. एक पेयर का तो हो गया, नाउ ट्राई फॉर रिमेनिंग टू. ओके, रिमेनिंग टू जो पॉसिबिलिटीज थे उसमें से कोई एक पेयर आप सिलेक्ट करो एंड रिपीट सेम स्टेप. ओके, थर्ड वेरिएबल एब्सेंट चाहिए, नहीं हो रहा है तो आप कैंसिल करके देखो. ओके, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप एक और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऐड किया. ओके, जो आप क्या कर सकते हो, जस्ट टू कैंसिल दैट थर्ड वेरिएबल यू कैन यूज दिस फर्स्ट सोल्यूशन. ओके, ओके, टू कैंसिल योर थर्ड वेरिएबल यू कैन यूज द फर्स्ट सोल्यूशन ऑल्सो.
ओके कैसे करना है आपको अभी इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा, ओके एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके या सिंपली फर्स्ट मेथड आपकी क्या है, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, उनमें से बस आपको 2 पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की जो मेथड है उससे सॉल्व करके आपको 2 सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। रिमेंबर दोज 2 सॉल्यूशंस आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। ओके अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अवर क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस, just solve dx upon y square equal to dy upon x square is equal to dz upon x square y square z square. Okay, so here also there are 3 possibilities, dx upon y square with this, okay, dx upon y square with this, and this with this. So dx dz dy dz and dx dy. Okay, ऐसे आप 3 पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हो। सी इसमें से रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो मे बी ये होगा कि मैं फर्स्ट और थर्ड से जा रहा हूँ, कोई स्टूडेंट सेकंड और थर्ड से जा रहा है, इट डिपेंड ऑन योर अप्रोच। ठीक है, तो उससे सॉल्यूशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ओके तो आपको बस क्या देखना है, जो भी पेयर आप कंसिडर कर रहे हो उस पेयर में थर्ड वेरिएबल आपका क्या चाहिए, एब्सेंट। सो हियर इफ आई कंसिडर फर्स्ट 2 रेशियोज से dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर, इनमें कहीं पे z है ही नहीं, सो आपका थर्ड वेरिएबल डायरेक्टली एब्सेंट आ रहा है। सो इन सॉल्यूशन हियर आई जस्ट कंसिडर द फर्स्ट 2 रेशियोज। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगे, और ये भी पेयर कंसिडर कर सकता हूँ, वो भी पेयर कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप रैंडमली सिलेक्ट करो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक से ज्यादा पेयर आ रहे हैं तो उसमें से कौन सी कंसिडर करनी, दैट ओके उससे सॉल्यूशन में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। आपके सॉल्यूशन दिखते समय अलग अलग दिखाई देंगे, बट एट द एंड दोस 2 सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। आपको मैंने एक्सप्लेन क्या किया, एट द एंड इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जस्ट फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो आपके 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कुछ और आ सकते हैं, किसी और स्टूडेंट के 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कुछ और आ सकते हैं। सी तो ये पार्ट थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, इसलिए एक से ज़्यादा अगर पेयर आपको मिल रहे हैं तो आप रैंडमली सिलेक्ट करो, कोई भी एक पेयर सिलेक्ट करो, स्टार्ट करो। ओके सो हियर इन फर्स्ट 2 ratios your third variable are absent, so I consider this pair dx upon y square equal to dy upon x square. Okay, the reason is what, because the third variable z is absent. Okay, now just write down the variable separable form. So the coefficient of variable separable form is coefficient of dx is x, it's function of x, the coefficient of dy is function of y, then we call it as the variable separable form. So this is not in variable separable form, so to convert this into variable separable form I just multiply dx, I just do this cross multiplication. Okay, then you will get this differential equation in terms of variable separable form. And जैसे आपका differential equation variable separable form में आ जाता है, okay, after that just take integration, okay, and you will get your first solution. So if I take integration on both side, on integrating x square dx y square dy, okay, you will get x cube upon 3 equal to y cube upon 3. हाँ, अभी इस क्वेश्चन में आपको कंपलसरी आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना है, इसलिए आपको मैंने पहले बोला है, इससे पहले जो भी पार्ट किया था दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज ऑल अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस पार्ट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन मत करो कि वो उसमें आप पर्टिकुलर सोल्यूशन में आप सी ऐड नहीं करते हो, बट इसमें आपको कंपलसरी सी ऐड करना है। ठीक है, मतलब जो आपके इंटीग्रेशन के रूल्स है वो सारे यहाँ पे फॉलो करने हैं। बट दिस C1 इज आर्बिट्री कांस्टेंट। सी अगर C1 आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ओके, उसकी वैल्यू C1 ही रहेगी। अगर आप उसको उसका ln लेते हो तो भी उसकी वैल्यू ln C1 ही रहेगी, क्योंकि वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। जनरली आप क्या करते हो, अब इसके बाद मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो आप आपका अप्रोच क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे x क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, 3C1, बट 3C1 की वैल्यू आप फिर से C1 भी लिख सकते हो, क्योंकि वो एक नोटेशन है या वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके, आपको आदत क्या है कि उसके जगह पे C1 डैश करो, बट आप कितने डैश करते जाओगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अगर 2-3 स्टेप में हो रहा है, ठीक है, तो उतने डैश आ जाएंगे, इसलिए वो अंडरस्टूड है। ठीक है, उससे आपके मार्क्स लॉस नहीं हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली C1 का जो कैलकुलेशन है उसको एज इट इज C1 ही रखो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते भी हो तो C1 ही लिखो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी C1 ही लिखो, ln से मल्टीप्लाई करते हो तो भी C1 लिखो। ओके, so I just multiply this by 3, but 3C1 can be written as C1 only. So this is your first solution, correct? So यहाँ पे आधा पार्ट आपका हो गया। ओके, ये आपने फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वन मोर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एंड दैट गिव्स यू द टोटल सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक और पेयर कैलकुलेट करनी है। ओके, अभी वो कैसे कैलकुलेट करनी है,
सो अगेन वी हैव टू फाइंड वन मोर पेयर, ठीक है। अभी एक पेयर तो आपने सिलेक्ट कर ली है, dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर, सो यू कैनॉट सिलेक्ट दैट पेयर अगेन, ओके। तो आपके पास अभी चॉइस क्या है, आइदर यू कैन सिलेक्ट दिस और आइदर यू कैन सिलेक्ट दिस, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड थर्ड। तो रैंडमली सिलेक्ट करो, ओके। तो मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इफ आई हियर आई जस्ट कंसिडर फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। आप सेकंड और थर्ड से भी जा सकते हो, दैट आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। दिखने में वो अलग दिखाई देगा, बट दैट टू सॉल्यूशंस आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सो डोंट वरी अबाउट इट। So dx upon y square is equal to dz upon x square y square z square, okay. But here problem is what, the third variable, okay, third variable यहाँ पे क्या है, y, okay, y अभी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, but you can cancel this y square, है ना। आपको पता है डिनोमिनेटर में ये कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो इफ आई कैंसल दिस y square, you will get dx upon 1 is equal to dz upon x square z square. Now you can see here your third variable y is absent. तो ये पेयर आप कंसिडर कर सकते हो, या आपकी कंडीशन है, अगर उस पेयर में थर्ड वेरिएबल एब्सेंट रहता है तो ही आपको आगे वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर एब्सेंट नहीं रहता है या अगर वो कैंसिल ही नहीं हो रहा है थर्ड वेरिएबल, देन यू हैव टू ट्राई दी अनदर मेथड। ये आपकी फर्स्ट मेथड ही है, ऐसे आपको सिलेबस में टोटल दे रहा 3 मेथड्स, इन दैट केस यू हैव टू ट्राई दी नेक्स्ट मेथड, ओके। लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे जाके वो कैंसिल हो रहा है, कहीं पे जहाँ पे अगर आपका वो थर्ड वेरिएबल एडजस्ट हो रहा है, उसी केस में ये सारा वर्कआउट होगा, ओके। अदरवाइज यू हैव टू चेंज योर मेथड। सो हियर योर थर्ड वेरिएबल इज एब्सेंट, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट मुझे x में चाहिए था, तो शिफ्ट दिस टर्म हियर, यू विल गेट x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz अपॉन z स्क्वायर, टेकिंग इंटीग्रेशन एज इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यू विल गेट दिस, एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है आपका व्हाट, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन जेड, सो योर फाइनल सॉल्यूशन इज दिस। इफ आई डू सम सिंप्लीफिकेशन, यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन जेड इज इक्वल टू C2. सो दिस इज योर सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन of the given symmetrical simultaneous differential equation, and that is all about the solution, general solution I can say. So this is all about question 1. ये सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ये सिंपल है, थोड़ा बहुत आपको लॉजिक यूज करना है, ओके। क्योंकि इसके लिए ऐसी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है, या ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं कि इस एप्रोच से आप जाओ, ओके, तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व होगा। कहीं पे ना कहीं पे जाके आपको आपका लॉजिक यूज करना है, ठीक है। सो ट्राई वन मोर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, solve dx upon 2x, dx upon 2x is equal to dy upon minus y is equal to dz upon 4xy square minus 2z, okay. So we have to try this differential equation, so let's try this solution, ठीक है। तो फिर से वही पार्ट, first find one pair, so there are 3 possibilities, first and second, correct, second and third, and after that I can say first, हाँ, कौन सी पेयर आप इसमें अभी ले सकते हो, टेल मी अ पेयर इन विच योर थर्ड वेरिएबल इज एब्सेंट, कैन यू टेल मी दिस, कैन एनीवन टेल मी, फर्स्ट वन, ओके। ऑब्वियसली आपको, हाँ, dx अपॉन 2x इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें z एब्सेंट है, सो ट्राई दिस, ठीक है। z इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट दिस, कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सॉल्व करो, यू विल गेट योर फर्स्ट सॉल्यूशन, ओके। 1 अपॉन 2x का इंटीग्रेशन 1/2 ln x माइनस ln y प्लस c1, ओके। इन दिस केस जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस सॉल्यूशन। ln में अगर आता है, जनरली आपको उस सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा आपको वर्कआउट करना होगा। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ln x इज इक्वल टू माइनस 2 ln y, दिस 2 एक्चुअली, ओके, आई शिफ्ट इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो ln x प्लस 2 ln y, नाउ आई रिप्लेस c1 बाय ln c1, ठीक है। ये चीज़ें आपको 12th से भी समझ में आ जाएगी, ये आपने 12th में भी किया है, आर्बिट्री कांस्टेंट के एडजस्टमेंट आई कैन से। नाउ log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज एक्चुअली log ऑफ a इंटू b, ओके। सो दिस इज log ऑफ a इंटू b एंड इज इक्वल टू ln इंटू c1, ठीक है। ये 2 आपको पता है कि y के पावर में जा रहा है, तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। नाउ यू कैन कैंसिल दिस ln, ठीक है। तो जनरली इस टॉपिक में आप चाहो तो कंसिडर करो, ln में अगर सोल्यूशन आ रहा है तो ट्राई टू कैंसिल दैट ln, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर एक्स एंड वाई में आपको दिखाई देना चाहिए। इन सम केस अगर ln कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, एट आप कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट से ln का कैंसिल कर सकते हो, बट अगर आप रखते भी हो, ओके, दैट आल्सो योर करेक्ट आंसर। अगर आपने बाई चांस ये रखा भी है एग्जाम में, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के ऐसे कोई सेपरेट वेटेज सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं रहता है,
बट अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो वो और भी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, या क्योंकि उस फैकल्टी के पास ये आंसर आ जाएगा यूनिवर्सिटी से, तो इट्स बेटर टू सिंप्लीफाई दैट सोल्यूशन। ओके, सो दिस बिकम योर फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, अगेन आई कंसिडर दैट क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, तो फर्स्ट 2 पेयर कंसिडर करके आपने अभी सॉल्व किया, सो दैट इज ओवर नाउ। ओके, नाउ टेल मी वन मोर पेयर वेयर द थर्ड वेरिएबल इज एब्सेंट। तो अभी एब्सेंट करने के लिए आपको मैंने 2 रिजल्ट दिए थे। ओके, हाउ यू सिलेक्ट दिस सेकंड पेयर। एक तो क्या है, अगर डायरेक्टली आपको मिल रहा है ऐसे पेयर जिसमें थर्ड वेरिएबल एब्सेंट है तो नो इशू। अगर नहीं मिल रही है पेयर तो आप क्या, आपको 2 चीजें चेक करनी है। चेक करो कि उसमें से थर्ड वेरिएबल कैंसिल हो रहा है कि नहीं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, वो एक आप कर सकते हो। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, यूज दिस फर्स्ट सोल्यूशन जो आपने अभी कैलकुलेट किया 1 इक्वेशन, वो सोल्यूशन यूज करके अगर आप, क्योंकि इसमें आपके पास रिजल्ट क्या है, x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू C1 है, ये आपके पास रिजल्ट है अभी। x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, C1 इज द कांस्टेंट। ओके, तो ये रिजल्ट यूज करके आप चेक कर सकते हो कि वेदर देयर इज एन पेयर ओके विच इज फ्री फ्रॉम अ थर्ड वेरिएबल। सो कैन यू टेल मी द अनदर पेयर। ओके, सो हियर इफ आई कंसिडर ओके, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आपने बोला है, शायद मैंने सॉल्यूशन लिखते समय फर्स्ट एंड थर्ड कंसिडर किया। ओके, सो एट देन दोनों का आंसर करेक्ट है। अगर आप सेकंड थर्ड से भी जाते हो तो भी करेक्ट है, या फर्स्ट एंड थर्ड से जाते हो तो देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से क्या कैलकुलेशन हो रहा है। आपको बस क्या देखना है कि सेकंड और थर्ड में आपको एक्स को एब्सेंट करना है, फर्स्ट और थर्ड में आपको वाई को एब्सेंट करना है। तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कंसिडर किया। ओके, बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक्स और वाई की, एक्स एंड जेड की पेयर है, सो वी डोंट वांट वाई। ओके, वाई का टर्म आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो कैंसिल अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, ये सोल्यूशन यूज करके देखो। सो इफ आई कंसिडर दी फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज इक्वेशन 1, तो आपके पास वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है C1, सो जस्ट पुट दैट वैल्यू। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। ओके, सो डायरेक्टली कंसिडर दिस स्टेप। ओके, सो dx अपॉन 2x एज इट इज dz फॉर x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है C1 माइनस 2z एज इट इज, इसमें से 2 भी कैंसिल हो रहा है, सो विल गेट x हियर, यहाँ पे 2C1 x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू C1 माइनस z, करेक्ट। हाँ, नाउ C1 इज द कांस्टेंट, तो आपको उसको कांस्टेंट जैसे ट्रीट करना है। सो हियर यू विल गेट अ पेयर वेयर थर्ड वेरिएबल y इज एब्सेंट, ठीक है। तो अभी इसके बाद आप वेरिएबल सेपरेबल से आगे सॉल्व कर सकते हो। सो जस्ट कंसिडर, so this equation already is in variable separable form, so just take integration of dx upon x is equal to dz upon 2c1 minus z। फर्स्ट का इंटीग्रेशन ट्रिवियल है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, बट सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिनोमिनेटर में टर्म कौन सा है, 2c1 माइनस जेड। ओके, इन डिनोमिनेटर टर्म इज 2c1 माइनस जेड, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस dz, करेक्ट, बिकॉज 2c1 इज द कांस्टेंट व्हिच डेरिवेटिव इज 0। सो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस जेड, दैट यू कैन एडजस्ट ऑन न्यूमरेटर। आपको बस करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1, करेक्ट, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1। अगर आप ये एडजस्टमेंट करते हो तो जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट हो जाएगा, एंड इन दैट केस योर आंसर इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये रिजल्ट आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, ठीक है, प्लस C2। ओके, जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन, I just try to cancel this ln, so log a plus log b is log of ab, this C2 can be written as ln C2, so ln get cancel, you will get this, ठीक है। यह आपका फाइनल सोल्यूशन है, बट इसमें आपने C1 इसमें आपको C1 की वैल्यू पता है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 our C1 is what, x into y square, so just replace that value in your last step, so you will get x into 2x y square minus z is equal to C2, so this is your second solution। Okay, now let's try the third example। Okay, so question number 3। okay, इसमें भी अभी फर्स्ट एंड सेकंड पेयर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, यार हाँ, यार थर्ड वेरिएबल इज एब्सेंट। अभी आप इसमें देखो एक्चुअली सारे वेरिएबल एब्सेंट है, ऑल आर कांस्टेंट्स ना, तो इसमें वो पार्ट आने ही नहीं वाला है ना। तो इफ आई कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड पेयर,
इसमें ऑब्वियसली आपका थर्ड वेरिएबल एब्सेंट है, एक्चुअली फर्स्ट सेकंड एक्स एंड वाई भी नहीं है, बट dx में एक्चुअली x इंक्लूड हो रहा है, dy में y इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट तो आप किसी भी वेरिएबल में कंसिडर कर सकते हो, ओके। कांस्टेंट टर्म कैन बी कंसिडर एज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ z बाय योर चॉइस, ओके। सो हियर z इज एब्सेंट, सो just take integration, you will get this x is equal to, so do this simplification, you will get 3x minus y is equal to c1। तो जैसे था वैसे सॉल्व करके मुझे ये मिल रहा है 3x minus y is equal to c1। बट अगर मैं क्वेश्चन में फोकस करता हूं तो ये सिमिलर टर्म यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्स वाई स्क्वायर जनरेट हो रहा था थर्ड टर्म में, ओके, dz के टर्म में। ये एक्स वाई स्क्वायर ऐसा एक टर्म था ना, 4 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक का आप यूज कर सकते हो, ओके। 3x माइनस वाई ये सेम टर्म यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ओके। बस यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस 3x है, तो मैं क्या करता हूँ इमीडिएटली यहीं पे चेंज करता हूँ, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1, सो विल गेट y माइनस 3x इज इक्वल टू -c1, बट अगेन -c1 कैन बी रिटन एज c1 ओनली, ठीक है। तो dz में एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने बस इसको चेंज किया, so here I just consider y minus 3x and that value is c1, okay, from this first solution। तो एक सोल्यूशन आपका हो गया, ओके। तो अभी सेकंड सॉल्यूशन में आप यहाँ पे y माइनस 3x की जगह पे आप c1 ले सकते हो, ठीक है। जो आपका थर्ड रेशो है वो टोटली dz में जाएगा, ठीक है ना, dz अपॉन 5z प्लस c1 इज एक्चुअली tan c1, dz अपॉन 5z प्लस tan c1, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ z ओनली। तो आप dz के साथ dy का भी पेयर आप ले सकते हो, या आप dz के साथ dx की भी पेयर ले सकते हो, ओके। तो सिंपल क्या है कि आप dx से करो क्योंकि नीचे 1 है, तो 3 का भी पार्ट, तो ये आपकी चॉइस है, आपको डिवाइस से करना तो आप डिवाइस से करो, तो मैं फर्स्ट और थर्ड ही ले रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन आई कंसिडर फर्स्ट एंड थर्ड रेशो, ओके। सो dx एंड dz में मुझे y नहीं चाहिए, बट ये y माइनस 3x की वैल्यू अगर मैं सोल्यूशन 1 से पुट करता हूँ तो उसकी वैल्यू आ जाएगी c1, ओके। नाउ यू कैन सी दिस इज अ पेयर वेयर योर थर्ड वेरिएबल दैट इज y इज एब्सेंट, ओके। सो यू कैन राइट इट्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड जस्ट सॉल्व। So already this differential equation is in variable separable form. Just by taking integration, you will get this. तो फर्स्ट का तो इंटीग्रेशन ट्रिवियल है, सेकंड का इंटीग्रेशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है 5z प्लस tan ऑफ c1, करेक्ट, उसका डेरिवेटिव क्या आता है 5 इंटू dz, करेक्ट, tan c1 का 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, तो आपको बस 5 की एडजस्टमेंट करनी है, तो जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, ओके। And in that case you can write the ln of denominator, correct, plus c2 as it is. So this is your I just shift 5 on LHS, so this is your second solution I can say, and so this to cover the general solution of this given symmetrical simultaneous differential equation, okay. And at the end, sorry, and at the end replace this c1 by its original value and whose value is y minus 3x, okay। so this is your final solution। तो अगर आप कंपेयर करते हो ना तो फर्स्ट जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, ओके, उससे भी ये टॉपिक सिंपल है, करेक्ट, ओके। ओके, सो हम शार्पली 12 तक लेक्चर लेने वाले हैं, या बस ये इंट्रोड्यूस करता हूँ, देन विल टेक सम डाउट्स ऑन दिस, ठीक है, ओके। सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस मेथड एंड विल गो फॉर डाउट्स, क्योंकि इसमें भी, हाँ, इस मेथड में आपको मैंने पहले बोला कि इसमें थोड़ा लॉजिक आपको यूज़ करना होगा, इट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। प्रीवियस एक्चुअली मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन एक्चुअली ईजी है, आपको देखकर ही समझ में आता है कि इसमें y एब्सेंट है, इसमें z एब्सेंट है, इसमें x एब्सेंट है, सो यू कैन चूज दैट पेयर, okay, you can choose that ratio to solve by using the variable separable form, okay। so next method क्या है, in this method our step 1 is like this, so this is our given symmetrical simultaneous differential equation, okay, dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। तो इससे आपको p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू समझ में आ जाएगी, okay। so just note the values of p, value of q, value of r from the given differential equation, okay। after that choose multipliers, तो मतलब ये आपका काम है, ओके, आपको सिलेक्ट करने, ओके। चूज एनी 3 फंक्शंस और एनी 3 वैल्यूज, आई कैन से L, M, N सच दैट अगर मैं L से P को मल्टीप्लाई करता हूँ, M से Q को मल्टीप्लाई करता हूँ, N से R को मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, एंड इफ आई ऐड दिस 3 टर्म्स, ओके, दिस वैल्यू मस्ट बी 0,
तो ये आपको मैंने बोला था कि ये इसमें थोड़ा बहुत आपको अपना लॉजिक यूज करना होगा, इट इज नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये मल्टीप्लायर सारे क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे, तो आप कितने सारे याद करके जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत आपको लॉजिक यूज करना है कि यहाँ पे क्या टर्म में ले सकता हूँ, सो दैट एल इंटू पी एम इंटू क्यू एन इंटू आर दिस वैल्यू बिकम जीरो, ठीक है। तो अभी के लिए आप स्टेप सारे याद रखो, ओके। थोड़ा बहुत आपको एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसे आपको मल्टीप्लायर्स सिलेक्ट करने, इसलिए मेथड का नाम ही क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। दिस मल्टीप्लायर्स एक्चुअली वी हैव टू सिलेक्ट, एंड जैसे आपके पास ये मल्टीप्लायर्स आ जाते हैं विद दिस कंडीशन, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आपको स्टेप 3 में आना ही भी नहीं है। सेम फॉर द प्रीवियस मेथड, जब तक उसमें थर्ड वेरिएबल आपसे नहीं रहता तब तक आपको आगे वेरिएबल सेपरेबल से ट्राई भी नहीं करना है, ओके। सो देयर आर सम कंडीशंस, जैसे आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, आपका फर्स्ट सोल्यूशन क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एल इंटू डी एक्स, नॉट एल इंटू पी, उसमें से बस एल ले लो इंटू डी एक्स, बस एम इंटू डी वाई एन इंटू डी जेड इज इक्वल टू सी वन, ओके। दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको बस ये पेयर कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि कितनी फास्ट मेथड है, जनरली इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, बट आपको थ्योरी एग्जाम में भी इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। आंसर आप देखते तो एक्चुअली 2 स्टेप में आंसर है, ओके। विद इन 2 स्टेप्स यू विल गेट योर आंसर, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। तो सेम लॉजिक से आपको एक और सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब आपको एक और पेयर कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लायर्स की, एल डैश एम डैश एन डैश, सो दैट वी सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। फिर उसके बाद सोल्यूशन भी इसी फॉर्म में होगा। तो मतलब जस्ट रिपीट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड कैलकुलेट वन मोर सोल्यूशन, बिकॉज in general the solution of symmetrical simultaneous differential equation contain 2 independent solution, ठीक है। उसमें कैसे भी करके आपको 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। We satisfies this condition, dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r, okay। So I will take one example, okay। फर्स्ट एग्जाम्पल ट्रिवियल है तो वो पे कवर करता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन था, dx अपॉन y माइनस जेड is equal to dy upon z minus x is equal to dz upon x minus y. So in solution, your p is y minus z, okay, q is z minus x, okay, and r is x minus y, okay. So just tell me 3 values, okay. Yeah, now this question is open to all. Just tell me 3 values so that p into what, y minus z plus q into z minus x and r into this p nahi, this l into this, m into this and n into this, okay, x minus y, this value is 0. बोलो। हाँ, सो ऑब्वियस चॉइस आपके पास क्या है, आप यल एम एन तीनों का आप क्या सेट करो, 1 1 1, मतलब सिंपली आपने क्या बोला है, जस्ट ऐड दिस 3 नंबर्स p प्लस क्यू प्लस आर, सो दैट इज योर फर्स्ट मल्टीप्लायर। बट आपको इसे 2 कैलकुलेट करने, एक का आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपके पास आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सो दैट इज योर फर्स्ट पेयर। कैलकुलेट, ओके, इमेजिन करो एंड ट्राई टू फाइंड वन मोर पेयर, एक और पेयर आपको कैलकुलेट करनी है, जिससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ओके, p से उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो q से और r से, सो दैट वैल्यू मस्ट बी 0। कैन यू टेल मी वन मोर पेयर? सी 2 2 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये सिमिलर है, हाँ करेक्ट। हाँ, आपको इंडिपेंडेंट पेयर कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपने एक पेयर कैलकुलेट की 1 1 1, उसको अगर आपने 1000 से भी मल्टीप्लाई किया तो भी वो सेम ही रहेगा, ओके। फाइंड अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, ओके, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो एक सोल्यूशन आपसे आया विच इज एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट कंसिडर एल इज इक्वल टू एक्स, एम इज इक्वल टू वाई, एन इंटू जेड, यानी अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो एक्स इंटू पी, एक्स इंटू वाई माइनस जेड, करेक्ट, वाई इंटू जेड माइनस एक्स एंड जेड इंटू एक्स माइनस वाई। आप चेक करके देखो, दिस प्लस एक्स वाई कैंसिल विद दिस माइनस एक्स वाई, करेक्ट, दिस माइनस एक्स वाई, ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट 0, ओके। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? सो अवर फर्स्ट पेयर इज एक्स वाई जेड, दोनों पेयर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अवर फर्स्ट पेयर इज एक्स वाई जेड, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, दैट एल इंटू डी एक्स, एम इंटू डी वाई, एन इंटू डी जेड इज इक्वल टू C1। सो जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर बाय 2, जेड स्क्वायर बाय 2, 2 को आप एडजस्ट करो, सो दिस बिकम योर फर्स्ट सोल्यूशन। आपने ऑलरेडी सेकंड पेयर भी कैलकुलेट करके रखी थी, ओके। सो अवर सेकंड पेयर इज 1 1 1, आप क्रॉस चेक करो, 1 इंटू पी प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू जेड इज 0,
सो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी वाई, 1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू C2, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C2. सो दिस इज योर second independent solution. Okay. So I just take this last question and after that I will stop. टाइम क्या हो रहा है, ओके, सो लास्ट 5 minutes. तो इस क्वेश्चन में मुझे बस आपसे पेयर चाहिए. ओके, अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर. ओके, सो जस्ट टेल मी these are your P, Q and Z. So just tell me first pair, sorry, just tell me first pair so that L into P plus M into Q plus N into R is equal to 0. बोलो. 1 1 1 से कैंसिल होगा क्या? करेक्ट. एक पेयर आपकी क्या है, एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड से यहाँ पे एक्स क्यूब जनरेट होगा, तो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब आप चेक करो, ये कैंसिल हो जाएगा. कहाँ पे, यहाँ पे वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब है ना. तो 1 1 क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब किससे कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब यहाँ पे क्या आने वाला है, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब. दिस टू आर डिफरेंट ना. ओके, सो 1 1 1 विल नॉट वर्क. ओके, क्योंकि आप किसी एक टर्म के लिए चेक करो, ये टर्म अगर कहीं पे कैंसिल हो रहा है तो एटलीस्ट यू कैन गो फॉर नेक्स्ट टर्म. ठीक है, तो 1 1 1 वर्क नहीं कर रहा है. अगर आप फर्स्ट टर्म एक्स मतलब एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे वाई क्यूब, यहाँ पे जेड क्यूब, फिर ये कॉम्बिनेशन आपका कैंसिल हो जाएगा. सो योर फर्स्ट पेयर इज करेक्ट, एक 1 1 1 सॉरी एक्स वाई जेड, सॉरी. हाँ, टेल मी वन मोर पेयर. गुड, करेक्ट. सो योर सेकंड चॉइस इज व्हाट, आप ये कैंसिल ही करो ना. अगर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, हो जाता है ना, तो इन तीनों की एडिशन ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, है ना. तो उसके लिए आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई दिस बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन जेड स्क्वायर एंड जस्ट ऐड, विल गेट योर सेकंड सोल्यूशन. तो इसलिए तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन होगा एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड. और आपका सेकंड सोल्यूशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू C2, आई कैन से. इसका सोल्यूशन इनकम्प्लीट है, मैं बस टाइप ही कर रहा था, तो ये आप कंप्लीट करो. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर.